قیامت تک نہیں قرآن کا منشور بدلے گا. خدا کے نام پر کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن نہیں ذرہ برابر جذبہ معمور بدلے گا. ولی رہبر زمانے میں یہی قرآن اپنا ہے. قیامت تک نہ بدلے گا یہی ایمان اپنا ہے. نہیں دنیا سے مٹ سکتی ہے یہ نسل مسلمانی. نہیں دنیا سے مٹ سکتی ہے یہ نسل مسلمانی. محافظ روز محشر تک ہوا رحمان اپنا ہے. مسلمان کا پرسنل بدل جائے نہیں ممکن. شریعت اپنے ہاتھوں سے نکل جائے نہیں ممکن. جزاک اللہ خیر. محترم سامعین کرام، آئیے اب پروگرام کا آغاز کیا جائے. اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کا اصول سامنے آ جائے تو بہتر ہوگا. مولوی عطا الحق چمپارنی کو میں دعوت دے رہا ہوں موصول تشریف لائیں اور ڈیبیٹ کے جو اصول ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ میں اصول بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہوں. ملتقى النقاش والحوار العلمی کے تحت منعقد ہونے والا یہ مذاکرہ اور بحث و مباحثہ، جسے انگلش میں ڈیبیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس پروگرام کے تحت منعقد ہونے والے پروگراموں کی آخری کڑی ہے. اس پروگرام کا موضوع نیا تو نہیں ہے لیکن نوعیت اور طریقہ کار الگ ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کے اندر علمی موقف کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی موقف بھی پیش کیے جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پیش کنندہ سیاسی یا سماجی کارکن نہ ہوگا. ڈیبیٹ کا بنیادی مقصد ایک موضوع پر مختلف زاویے نگاہ سے فکر اور نظر اور جستجو اور تتبع کے ساتھ اس پہ کلام کرنا، تاکہ آپ اپنی بات کے ذریعے دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو ثابت کر سکے اور مد مقابل کو مات کر سکے. ڈیبیٹ کے اندر مد مقابل کے کسی فرد کو اگر اسپیکر پہ کسی طرح کا کوئی اعتراض آئی ہو تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ اونچا کر لے. ڈیبیٹ کے پہلے اور آخری منٹ کے اندر کسی کو کسی طرح کے کوئی سوال کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی. جامعہ ہاذا کے وقار اور قانون ہند کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اب میں اس پروگرام کے باغ ڈور کو مولانا توصیف صاحب کے سپرد کرتا ہوں، جو اس وقت اینکر کی حیثیت سے یہاں موجود ہے. مولانا توصیف. مسلم معاشرے میں ٹرپل طلاق یعنی طلاق کہہ کر مسلم مہیلاؤں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. مسلم مہیلاؤں کے سروں پر لٹکتی ٹرپل طلاق کی تلوار. ٹرپل طلاق کو ختم کرنے کے لیے آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ. 22 اگست 2017 کو آیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اسی کو لے کر 28 دسمبر 2017 کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا بل. جی ہاں، 28 دسمبر 2017 کو پاس کیا گیا لوک سبھا میں بل. لیکن مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں. جی ہاں، مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں. اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرپل طلاق کو ختم کر دینا چاہیے یا ٹرپل طلاق شریعت کا حصہ ہے. دوسرا بڑا اور اہم سوال کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت میں مداخلت ہے. کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت میں مداخلت ہے. تیسرا مہتوپورن اور اہم سوال کہ کیا لوک سبھا میں پیش کیا گیا بل
इंसाफ के बजाय औरतों पर जुल्म है। क्या लोकसभा में पेश किया गया बिल इंसाफ के बजाय औरतों पर जुल्म है? और क्या हिज़्ब इक़्तिदार का इसमें सियासी मफाद वाबस्ता है? और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल में खराबियां हैं। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि इस बिल को बनाने में कानूनी बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसी पर, और इसी पर हमारे सवाल होंगे हमारे पैनलिस्ट से। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा मौलाना मोहम्मद इरफान कासमी। मौलाना कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की नुमाइंदगी करेंगे। मशहूर आलिम दीन की हैसियत से मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अरमान जमाली, मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अरमान जमाली, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की नुमाइंदगी करेंगे। और इसी के साथ हमारे बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब शमीम खान साहब, जो एज एडवोकेट हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मौलाना जनाब शमीम खान साहब, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं, आपको वेलकम कहता हूं सर। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत ही खास मेहमान जनाब हस्सान नसीमी, जो कि हिज़्ब मुखालिफ की नुमाइंदगी करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त के बहुत ही अहम खास मेहमान, बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट मिस्टर रागिब, जो कि हिज़्ब इक़्तिदार की नुमाइंदगी करेंगे, सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हम इन्हीं सवालात को लेकर हमारे पैनलिस्ट के पास पहुंचे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि मुतासिरा ख़वातीन की आवाज़, उनका दर्द, उनकी चीख पुकार सुन ली जाए। किस तरह से उन पर जुल्म हुआ है, किस तरह से उनको उनके घरों से बाहर कर दिया गया है। जी खाना बना रही तो पीछे से पता चला का फोन आ गया कि 3 तलाक फोन पे बोल दिया। मेरे साथ यही हुआ, 15 दिन का मेरा बच्चा मासूम, मैं वेट कर रही थी कि मेरे शौहर आएगा। फादर मेरे मरे थे, 40 दिन हुए थे। मेरे पापा को मैं बुला रही थी कि पापा एक्सपायर हो गए, पापा के मरने में भी नहीं आया, मतलब किसी हालात में नहीं आया। पता चला दूसरी औरत को भाग गया, लेके मकान तक बेच दिया उसने अपना, मतलब पूरा शहर से समझा जब समीर गायब हो गया। अभी बताइए ये 5 लाख रुपए आपने सुनी इनकी दर्द की आवाज, और सुनिए। 1972 को बना था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 1972 को बना था। औरतों की तलाक, महर, निकाह और विरासत को लेकर के, इसकी परेशानियों को लेकर के बना था। लेकिन आज तक कोई इनकलाब नहीं आया। वही औरत को तलाक के गलत इस्तेमाल में औरत को धक्के खाना पड़ा। बूढ़ा बाप अपनी तलाकशुदा बेटी को देख करके और बूढ़ा हो रहा है, और भाई अपनी तलाकशुदा बहन को देखकर और परेशान हो रहा है। औरत अपनी जिंदगी और अपना मुस्तकबिल दोनों अंधेरे में पा रही है। बहुत नाकामियां देखे लिए और बहुत तलाक में बहस हो चुकी है। हम नहीं चाहते हैं कि आप इस्लाम के और इस्लाम की तालीमात की गलत तस्वीर पेश हो। हमने सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद रखी है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट उसके औरतों की जी आपने सुना कि किस तरह से मुस्लिम औरतों पर जुल्म हुआ है, किस तरह से उनके शौहरों ने उनको अपने घरों से बाहर निकाल दिया। ये है वो मंजरनामा। और इन्हीं सवालात को लेकर हम चलते हैं हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट, सबसे अहम मेहमान मौलाना इरफान कासमी साहब के पास। जी मौलाना कासमी, क्या ट्रिपल तलाक शरीयत का हिस्सा है? क्या औरतों पर जुल्म के लिए इसको जायज रखा जाएगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक हसास मौजू पे डिबेट कराई और उसमें पर्सनल लॉ की नुमाइंदगी को तलब किया। सबसे पहले इस्लाम के बारे में, तलाक के बारे में इस्लाम का रवैया क्या है, तलाक को इस्लाम किस नज़र से देखता है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस्लाम के अंदर तलाक को फर्ज या वाजिब का दर्जा दिया गया है। कोई नहीं कर रहा है सर, ये मुस्लिम खवातीन। लेट सर, मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, पहले मेरी बात पूरी रखने दें। 2 मिनट में बात रखिए। जी, इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो कहता है कि सबसे पहले निकाह के वक्त औरत से
पूछा जाए क्या वो राजी है या नहीं, अगर वो राजी ना हो तो वो कैंसिल कर सकती है, जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात, जब इस्लाम में शादी हो जाती है तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपस में मोहब्बत से रहो। अगर कभी नाचाकी और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ूहुन्ना। पहला स्टेप दिया है कि अगर कभी नाचाकी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको नसीहत करें, औरतों को समझाएं। अगर वो इस पे भी ना माने तो दूसरा स्टेप दिया है वाजुबुन्ना सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं पूरा स्टेप दे रहा हूँ ताकि आप तलाक का मौक़िफ़ समझ लें कि कुरान करीम में और शरीयत के अंदर तलाक है क्या, वरना आप फिर बहस मखलूत हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगी। तो कुरान करीम के अंदर बताया कि अगर नसीहत से काम ना चले तो उनसे अपना बिस्तर अलग कर लें। इसके बाद आगे फरमाया कि वज़रिबूहुन्ना, अगर इससे भी बात ना चले, बिस्तर अलग करने से बात नहीं चलती है तो उनके ऊपर तंबीह की जाए और हल्की तंबीह की जाए जिससे कोई नुकसान ना हो। अगर इससे भी बात नहीं चलती है तो अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं कि अगर इससे भी बात ना चले, सर मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दे, बात ही आने दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इससे भी बात ना चले तो आपस में सुलह मशवरे के लिए खानदान के लोगों को बिठाएं और एक हकम औरत की तरफ से और एक हकम मर्द की तरफ से बिठाएं और इसको सलाह मशवरा करके इसको खत्म करें। अगर इस पे भी बात ना पूरी हो तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब जुदा हो जाए और तलाक दे दे। लेकिन इस पे भी अल्लाह ताला ने अलग नहीं छोड़ा और अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि ये कहा कि बल्कि ये कहा कि तलाक देने के बाद औरत उसी के घर में रहेगी, शौहर के घर में रहेगी, वहीं उसका नाम नफका होगा, वो अलग नहीं होगी। 3 महीने के अंदर अगर शौहर कभी राग़िब हो जाए और वो अपने किए हुए पे नादिम और शर्मिंदा हो तो उससे रजात कर सकता है। कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया कि तलाक यहाँ तो रजत नहीं हो रही है। सर मैं वही तीसरे पे आ रहा हूँ, सर अभी मैं तीसरे पे आ रहा हूँ। कुरान करीम में फरमाया कि पहले के बाद अगर दूसरा दे दिया तलाक मर्रतान, अगर दूसरी तलाक दे दी है तो फइमसाकुम बिमारूफ, चाहे तो उसको अच्छे तरीके से रख लें और तस्रीहुम बिइहसान या एहसान के साथ उसको छोड़ दें। तीसरी बात आगे फरमाया कि अगर दूसरे से भी काम नहीं चल रहा है फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि दूसरे भी देने के बाद उसने तीसरा भी अगर किसी ने 3 तलाक भी दे दी, एक दे दी जब भी आ गया, सर मैं पॉइंट पे आ गया, एक दे दी जब भी, 2 दे दी जब भी, तीसरा दे दी जब भी वो 3 तलाक वाक़ हो जाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू ले सर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं सर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कह दिया फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, कि अगर किसी ने 3 तलाक दे दी यानी दूसरे के बाद जो तलाक मर्रतान उसके बाद अगर इन सारे स्टेप भी करने के बाद भी अगर कोई अचानक एक्सीडेंटली कोई 3 तलाक दे देता है तो 3 तलाक वाक़ हो जाएगी। 10 सेकंड में ये बात जाहिर कीजिए कि क्या ट्रिपल तलाक कुरान के अंदर है, क्या इस्लामी है ट्रिपल तलाक? यस पहली बात जो आप कुरान के अंदर बार-बार ये बात आ रही है, बात समझने की है कि शरीयत सिर्फ कुरान नहीं है, शरीयत को सिर्फ कुरान से नहीं समझा जाएगा। जी आपकी बातें भी शरीयत है। नहीं मेरी बात नहीं, मैं तर्जमा नहीं करूंगा, शरीयत की बात को नकल कर रहा हूँ आपके सामने, मेरी बात शरीयत नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर ये कहा जाए कि कुरान करीम के अंदर 3 तलाक नहीं है, 3 तलाक नहीं है तो ये गलत है। शरीयत सिर्फ कुरान नहीं है बल्कि शरीयत कुरान भी है, हदीस भी है, इज्मा भी है, क़ियास भी है। इन चारों में अगर 3 तलाक ना मिले तो आप कह सकते हैं 3 तलाक। जमाली कुछ कहना चाहते हैं जी, क्या ट्रिपल तलाक इस्लामी है, क्या इस्लाम ट्रिपल तलाक की इजाजत देता है और क्या औरतों पर इसी तरह से जुल्म होता रहेगा? क्या कहीं भी ट्रिपल तलाक का कुरान पाक में जिक्र है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी का आभारी हूँ और बिलखुसूस आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जहाँ तक आपका सवाल है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस्लाम एक जेंडर जस्टिस का मजहब है। इस्लाम के जो फंडामेंटल व्यूज हैं, वैल्यूज हैं, उनके अंदर सबसे पहली चीज है जस्टिस, इंसाफ, रहम, तरहम, ईसार। अगर इस्लाम के फंडामेंटल वैल्यूज के खिलाफ कोई बात करता है तो कुरान सिरे से उसका इनकार कर देता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई इस्लाम के फंडामेंटल वैल्यूज के खिलाफ कोई भी बात पेश करता है कुरान उसकी सिरे से मुखालफत कर देता है। और दूसरी बात यह है कि अगर ट्रिपल तलाक की बात है, जहां तक ट्रिपल तलाक ऑफ इनोवेशन है, तलाक बिदअत है, यानी इसका तलाक बिदअत है, एक मिनट सर, कि तलाक बिदअत है और तलाक बिदअत का कुरान करीम के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। ये सिर्फ इनकी अपनी विचारधारा है, ये सिर्फ अपनी विचारधारा। कुरान पाक का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये तो क्या ये मौलाना
जी जी जी, इनकी अपनी विचारधारा है, ये इनकी विचारधारा, जी जी जी, इनकी मनगढ़ंत बातें हैं, ये अपनी विचारधारा है। कुरान में इसका कहीं ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र नहीं है। इसी सवाल को लेकर हम चलते हैं मौलाना इरफान के पास। जी मौलाना अरमान जमानी की बात का क्या जवाब देंगे? जी बताएं। देखिए सर, ये बात जो बार बार मैं पहले कह चुका हूँ कि शरीयत जो है सिर्फ कुरान नहीं है। अगर आप सिर्फ कुरान में देखने जाएंगे तो नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। आप तो अक्सर मसाइल इनकार करते निकल जाएंगे। जी मेरा कहने का मतलब है जो ये कह रहे हैं कि तलाक बिदअत कुरान में नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ इनको कि ये तलाक हसन जिसको ये मानते हैं वो तलाक हसन भी कुरान से नहीं साबित कर सकते, तलाक हसन भी नहीं साबित कर सकते, यहाँ तक कि तलाक रजी का लफ्ज भी नहीं दिखा सकते। अगर वो नहीं है तो क्या ट्रिपल तलाक है? तो क्या ट्रिपल तलाक है कुरान में? नहीं, तीन तलाक का जिक्र कुरान में नहीं है, तीन तलाक का जिक्र कुरान में नहीं है। बिदअत की बात कर रहे हैं, तलाक बिदअत है नहीं, तीन तलाक तो मैंने कह दिया फाइन तलाक का। मैं सवाल कर रहा हूँ कि बताएं मुझे कि वो कौन सी तलाक है कुरान करीम के अंदर कि जिसके बाद औरत को अपने पहले शौहर के पास आने के लिए दूसरे के पास जाना, दूसरे से शादी करना जरूरी है, वो कौन सी तलाक? सर एक मिनट, यहाँ पे बात चल रही है ट्रिपल तलाक सिंगल सीडिंग के अंदर। यहाँ ट्रिपल तलाक सिंगल सीडिंग की बात कर रही है, ट्रिपल तलाक सिंगल सीडिंग की तलाक की बिदअत है, और सिंगल ने बात की है वो सिंगल सीडिंग नहीं है। 1 सेकंड सर, हमारे बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जनाब मिस्टर रागिब जी। क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? जी इसमें इक़्तिदार क्या कहती है इस सिलसिले में? क्या तीन तलाक के जरिए औरतों को घरों से जुदा किया जाता रहे? जी तीन तलाक संविधान के खिलाफ। जी अगर कोई हिंदू भाई माँ के गर्भ के अंदर बेटी को मार देता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जी इसी तरह अगर कोई मुसलमान हमारी माँ बहनों को तीन तलाक दे करके उसकी जिंदगी बर्बाद करेगा तो उसे भी जेल जाना पड़ेगा। जी तीन तलाक ये समानता का अधिकार नहीं है। जी हम अपनी माँ बहनों को समानता का अधिकार देंगे। मिस्टर रागिब ने कहा समानता का अधिकार, जी जेंडर जस्टिस, जी सिंफी मुसावात। जी इसी सवाल को लेकर अब हम चलते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान हसन नसीमी के पास। जी नसीमी साहब क्या कहते हैं? जी आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हमारी पार्टी के इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ है कि तलाक़ सलासा, हमारी पार्टी के जो ट्रिपल तलाक के बारे में ये है कि ऑफिशियल ओपिनियन के मुताबिक ये है कि हमारी पार्टी ट्रिपल तलाक को बिल्कुल गलत करार देती है। जी आप ये कहती है कि जो शख्स ट्रिपल तलाक देते हैं वो महिलाओं के अत्याचार करते हैं। जी हसन नसीमी साहब ने कहा कि ट्रिपल तलाक जो लोग देते हैं वो औरतों पर जुल्म करते हैं। जी क्या औरतों पर जुल्म रवा रखा जाएगा? जी मौलाना जवाब दें। सियासी मुद्दा है, अगर इनको औरतों को इंसाफ दिलाना है तो अबेंडेड वुमेन मैरिज को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया जा रहा? उन औरतों को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है जिनके शौहर उनसे शादी करने के बाद शादी के ताल्लुकात मियां बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं करते, ताल्लुकात कायम नहीं करते और उनको तलाक भी नहीं देते। ऐसी तादाद हिंदुस्तान के अंदर उनकी 24 लाख है और उनमें सबसे ज्यादा 22 लाख हिंदू औरतों का आता है। आप पहले उनको इंसाफ दिलाइए। जिसको भी इंसाफ मिल रहा है, क्या आप अपनी कम्युनिटी की औरतों को इंसाफ नहीं दिलाना चाहते? इंसाफ दिलाना चाहते हैं सर। जो लोग ये कर रहे हैं हम उनका कंडम करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है। जो भी अपनी औरतों को तीन तलाक दे के उनको घरों से निकालते हैं वो शरीयत के खिलाफ भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के यानी आप ट्रिपल तलाक को गलत मानते हैं? ट्रिपल तलाक को नहीं सर, जो तलाक दे के उनको निकालते हैं गलत मानने का मतलब ये नहीं कि वो शरीयत का हक नहीं है, शरीयत का मसला नहीं है, गलत है। लेकिन अगर कोई दे दिए तो यानी उसको बाकी रखा जाएगा। इसी तरह मुआशरे के अंदर ट्रिपल तलाक दी जाती रहनी चाहिए। दी जाती रहनी चाहिए नहीं, हम कह रहे हैं सर हम रिफॉर्म करेंगे, हम मुआशरे में चलेंगे और उसकी इस्लाह करेंगे, हम समाज में उतर के उसकी इस्लाह करेंगे। आप इस तरह से उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। जी अभी तक क्या किया आपने? जी जो पार्टी कह रही है अभी तक क्या किया? उसने 24 लाख औरतों को क्या किया? उनके साथ क्या किया? उन्होंने एक भी बिल उसके ऊपर नहीं पास किया, उसके ऊपर कोई भी मसला नहीं आया। जी मिस्टर रागिब आपसे सवाल है, क्या किया आपने? मुस्लिम पर्सनल लॉ ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ये तमाम के तमाम मुसलमानों की तर्जमानी तो नहीं करती। जी जितनी महिलाएं अत्याचार के अंदर डूब रही हैं, जितनी महिलाओं को तलाक दे देकर दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी जिंदगी जेल खाने से भी ज्यादा बदतर बना दी गई है। अगर आज हम उनके साथ इंसाफ की बात कर रहे हैं तो हमारे मध्य मुकाबिल को किस चीज की बदली हो रही है? ये पार्टी सर उस वक्त कहाँ चली जाती है? जी ये पार्टी उस वक्त कहाँ चली जाती है जब नजीब की अभी पूरे दिल्ली में घूमती है, उनको इंसाफ जी नहीं मिलता। ये पार्टी जुनैद के खानदान वालों के साथ जी सर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। जो लोग एक साथ तलाक देते हैं वो शरीयत की नजर में
لیکن جی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع ہوگی. اور یہ بات جو بار بار کہی جا رہی ہے قرآن کے اندر، یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن سے بھی شریعت چلتی ہے، احادیث سے بھی چلتی ہے، اجماع سے بھی چلتی ہے، قیاس سے بھی چلتی ہے. اگر آپ کو قرآن میں نہ ملے تو میں نے تو پہلے ثابت کیجئے کس طرح سے یہ شریعت کا حصہ ہے. جی آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. جی بتائیے ان میں سے کس سے ثابت ہے یا چاروں سے ثابت ہے؟ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں نے پہلے کہہ دیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. میں نے کہا تھا کہ وہ کون سی طلاق ہے. میں نے کہا تھا مسلم منچ کے علماء سے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ کون سی طلاق ہے کہ جس کے بعد عورت کو اپنے پہلے شوہر کے پاس آنے کے لیے اس کو دوسرے شوہر سے شادی کرنی پڑے گی. یہ کون سا طلاق ہے؟ نہیں وہ سنگل سیٹنگ والی طلاق نہیں ہے. پہلی بات ہمارا جو یہاں مدت چل رہا ہے یہاں پہ جو بات چل رہی ہے سنگل سیٹنگ ٹرپل طلاق پہ چل رہی ہے. سنگل سیٹنگ کی بات چھوڑ دیا، آپ سنگل سیٹنگ کو سامنے رکھیں. یہ سنگل سیٹنگ ٹرپل طلاق پہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہاں وقت ہوا ایک بریک اور اس کے بعد ہم ملیں گے اور گفتگو کریں گے ہمارے پینلسٹ سے سپریم کورٹ کے آئے ہوئے فیصلے پر کہ کیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت کے اندر مداخلت ہے. ایک بریک اور اس کے بعد بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم وقف دیوبند میں بزم ملتقى نقاش والحواری علمی سے لائیو ڈیبیٹ اور طلاق ثلاثہ کی جانکاری. آپ کا ہوں آبھاری. جی ویلکم بیک، خوش آمدید، دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. یہ وقت ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیدھے سپریم کورٹ کے فیصلے پر. کیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کو سب سے پہلے جان لیتے ہیں. جی سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ نے کہا کہ طلاق ثلاثہ ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق غیر آئینی اور غیر اسلامی ہے. اسی کو لے کر ہم سوالات کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے. سب سے پہلا سوال میرا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندے مولانا عرفان قاسمی سے کہ جی مولانا قاسمی، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسٹنٹ ٹرپل طلاق شریعت کے اندر مداخلت ہے؟ کیا آپ عورتوں پر ظلم اسی طرح روا رکھیں گے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو ادب کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہی جو انڈین قانون ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن، ہم کہتے ہیں کہ یہی انڈین کانسٹیٹیوشن ہم کو کہتا ہے آرٹیکل 25 کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی مذہبی آزادی ہے، اس کی مذہبی آزادی میں اس کے مسائل میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا دل پر طلاق کا مسئلہ، یہ پرسنل لا کا مسئلہ تھا. اس میں اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آرٹیکل 25 کا النگھن ہوگا اور اس کے خلاف یہ فیصلہ ہوگا. سب سے پہلی بات. جی دوسری بات 30 سیکنڈ میں بات مکمل کریں. دوسری بات یہ سر کہ جو قانون ہے انڈیا کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمیونٹی کا یا کسی بھی مذہب کے خلاف ان کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں اور کوئی بل پاس کرنا ہے، کوئی فیصلہ لانا ہے، تو وہاں ان کی کمیونٹی کے علماء سے، ان کے مذاہب کے علماء سے بات کی جاتی ہے. سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی کسی سے اور فیصلہ سنا دیا. بات کیوں کی جاتی جب آپ کو فکر ہی نہیں تھی؟ بات کیوں کی جاتی جب آپ کو فکر ہی نہیں تھی؟ فکر تھی سر. جی 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس آتا ہوں. لیکن فکر ہے سر، اس لیے تو ہم نے بات کی تھی. سر جی اب میں اسی سوال کو لے کر چلتا ہوں مولانا ارمان جمالی کے پاس. جی مولانا، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے شریعت کے اندر مداخلت کی ہے؟ ابھی مولانا قاسمی صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جب کوئی طلاق، اگر کوئی چیز پاس کرنی ہو یا کوئی اگر قانون بنانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو وہاں کے علماء، میں یہ کہوں گا کہ اگر انڈیا کے اندر علماء ان لوگوں کو اگر شریعت کے اندر مداخلت لگتی ہے تو جہاں تک اسلام کی بات ہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے اور جہاں تمام جگہ اسکول اور یہ کنٹری ہے جہاں اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ مکتبہ فکر جو اسلامک مکتبہ فکر ہے، ان تمام لوگوں نے جو ہے ٹرپل طلاق پر بین لگایا ہے. تو کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے شریعت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے؟ بلکہ ہمارے ہندوستان میں یہاں پر بین نہیں لگ رہی ہے. جی
ज्यादा शरीयत को जानते हैं। जी नहीं सर, पहली बात ये है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब हैं उनको अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। जब मुकम्मल आज़ादी है फिर आप उसमें इंटरफेयर कैसे करेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद हक दे रहा है, संविधान आपको हक दे रहा है कि आप अपने मजहब पर आजाद हैं अमल करने के लिए, तो फिर आप कैसे उसके खिलाफ? और दूसरी बात 21 ममालिक की जो बात की जा रही है सर, 21 ममालिक की जो बात की जा रही है वो ये है कि वहाँ रिफॉर्म एक कमेटी बनाई गई है रिफॉर्म करने के लिए, माशरे को समझाने के लिए, उसका तस्करा नहीं कर रहे। जब हमने जी मैं लेके चलता हूँ हमारे बहुत ही खास मेहमान जो नसीमी साहब है। जी नसीमी साहब, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? जी क्या सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आया आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हिस्ब इक़्तिदार इसमें अपनी सियासत गर्म कर रही है, क्रेडिट लेना चाहती है, जी बताएं। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम कबूल करते हैं। सही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा जी कि रूलिंग पार्टी जो है इसके अंदर अपने आप को आगे बढ़नी चाहती है, जी ये उनका सही नजरिया नहीं है। जी इसलिए सही नजरिया सियासत कर रही है। जी 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 इस तरह की सियासत बिल्कुल गलत की जा रही है। जी। इसलिए जो औरतों को उन्होंने आजादी नहीं दी। जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हक तो कोर्ट ने दिया है, तो ये हक तो कोर्ट को मिलना चाहिए। ये सियासत कैसे कर रहे हैं? जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मैं लेके चलता हूँ जो हमारे साथ बहुत ही मशहूर वकील शमीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शमीम खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? किस तरह से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 25 का हवाला दिया जा रहा है, मजहबी आजादी का हवाला दिया जा रहा है कि मजहबी आजादी जो आर्टिकल 25 के तहत दी गई है उसका उल्लंघन किया गया है, उसकी मुखालफत की गई है, ये शरीयत के अंदर मुदाखलत है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? सर्वप्रथम इस सभा में उपस्थित आज के मुख्य न्यायाधीश श्री हजरत मौलाना सज्जाद साहब का मैं आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसमें हम सभी पैनलिस्ट को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है और विशेष तौर पर आज के श्रोतागणों का भी मैं आभारी हूं कि आप इस सभा में आए और इस सभा को सुंदर बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। साथियों, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो कंडीशन बनी है इन्हीं लोगों की वजह से। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं माफी चाहूंगा जी। मैं किसी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं जी। मैं एज ए वकील यहाँ प्रेजेंट हुआ हूं जी। मुझको बोलने दे आप बीच में जो है डिस्टर्ब ना करें जी। मैं निष्पक्ष हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं एज ए वकील मैं लॉ की बात करूंगा और उसमें अगर किसी को आपत्ति होगी तो मेरे बोलने के बाद किस तरह से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? इसमें दो चीज मैं कहता हूँ, दो चीज इसमें आप समझने की नोकते जो बिंदु की पॉइंट है, नोकते की बात है जी। उसमें एक चीज तो ये है, ये जो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है, ये बहरहाल इसको समझने में गलत कह रहे हैं, मुदाखलत नहीं है। और ये दूसरी चीज ये कह रहा था, मैं एक ही बात पहले एक कर लेता हूं कि मुदाखलत क्यों नहीं है जी। ये आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार हिंदी में कहते हैं, फंडामेंटल राइट इंग्लिश में कहते हैं, उसमें 25, 26, 27, 28 ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे फ्रीडम है, आजादी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहो वो कर लोगे। बहरहाल आज हमें बात करें कानून पे, ये कह रहे हैं मुदाखलत हुई कि नहीं हुई, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत शरीयत न्यायालय को करने का हक कि नहीं है। मैं हमारे काबिल दोस्त, हमारे मित्र जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तर्जमान है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो शाह वालों का केस हुआ था आज से 20 साल पहले, न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या कहा था कि आप रिफॉर्म करो सोसाइटी को, आप कानून बनाओ, बताइए आपने क्या किया? रिफॉर्म कर रहे हैं सर, रिफॉर्म कर रहे हैं सर, रिफॉर्म नहीं किया। रिफॉर्म कर रहे हैं। दारुल इफ्ता इसीलिए बना है सर, दारुल कज़ा इसीलिए बना है, आप अगर इसीलिए बना है सर। लेट मी स्पीक, लेट जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुझे बोल तो लेने दो मेरे भाई, मुझको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने तो दो। जी जी बोलिए। आपको अगर नहीं एक्सेप्ट है आप उसको डिनाई कर जी, गो अहेड जी। बोलने तो दो। 30 साल पहले जब न्यायालय ने कहा तो इन्होंने कुछ नहीं किया,
कुछ नहीं करने का मतलब कि इसमें ठोस कदम नहीं उठाया गया, सोसाइटी को रिफॉर्म किए, अल्लाह जाने किस एतबार से ये किए, कोई कानून नहीं बनाया। शाहबानों का केस हुआ, माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी इस सरकार में, उसमें न्यायालय ने फिर कहा शाहबानों के केस में कि आप जो है मुस्बत कोई एक कानून बनाइए। और ये क्यों कहा, कानून इनको नहीं मालूम है, चूंकि ये फंडामेंटल राइट्स ही पढ़े, ये डीप में नहीं गए। कानून फंडामेंटल राइट जो बुनियादी अधिकार है, अगर उसकी वजह से समाज में खराबी उत्पन्न हो रही हो, बुराई पैदा, कई ऐसे केसेस आए जिसमें ये ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग दी गई। जी उसके बाद हमें जी कई केसेस थे। मौलाना काजी कुछ कहना चाहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? छठा पॉइंट था कि अगर वो आदमी 3 साल की जेल काट के अपनी बीवी के साथ उसी तरह नहीं रह सकता। इससे पहले हुकूमत ने कहा था कि कानून इसलिए मैरिटल रेप के खिलाफ हम कानून इसलिए नहीं बनाते हैं, इसलिए कि उससे खानगी मसाइल पैदा होंगे। तो क्या यहाँ 3 साल अगर जेल काटेगा तो यहाँ खानगी मसाइल पैदा नहीं होंगे? जिसकी वजह से वो बंदा 3 साल जेल काट रहा है, उसके साथ वो फिर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार होगा। जिसकी वजह से वो बंदा अपने बाल बच्चों से दूर हो रहा है और उसको जबरन 3 साल खर्चा भी देना पड़ रहा है अपनी बीवी को। क्या वो अपनी बीवी के साथ भी उसी तरह रह सकता है? नहीं रह सकता। और आखिरी बात है ये सर कि देखिए, इससे बड़े केसेस हैं। 3 साल की सजा वहां दी जाती है जहां मजहबी फसाद कोई कराए और मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाए, वहां 3 साल की सजा होती है। और इसी तरीके से नहीं घुमा नहीं रहे सर, ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून की बात कर रहा हूँ। जालसाजी पर 2 साल की सजा होती है। जब सुप्रीम कोर्ट इसको सजा ही नहीं मानता, इसका असर ही नहीं मानता, तो फिर इस पे आप कैसे क्रिमिनल एक्ट ला सकते हैं? जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से इस बिल के अंदर खामियां हैं। मौलाना कासमी बयान कर रहे थे, लेकिन अब हम चलते हैं एडवोकेट जनाब शमीम खान साहब के पास। जी क्या कहेंगे सर? क्या आपको लगता है कि वाकई इस बिल के अंदर खराबियां हैं? बिल्कुल बहुत सी खराबियां हैं, वो तो मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मेरे मित्र अभी जो बोल रहे थे उसमें मैंने एक बात गलत कही जी। और इनको नॉलेज नहीं होने की बिना पर जैसे भी इन्होंने मौसूफ ने कहा कि क्रिमिनल ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट है जी, सिविल इश्यूज है जी, इसको सिविल को क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं ला सकते हैं जी। इनको मालूम नहीं है। तो आपको क्या लगता है हुकूमती मुआहदा या सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? नहीं, उसमें खराबी तो है, बैरन मोड़ूंगा। ये जो जुमला इन्होंने कहा ये आपत्तिजनक है जी। ये गलत कह रहे हैं कि सिविल ऑफेंस को, सिविल कॉन्टेक्स्ट को आप एक क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं जी। आपको 2 मौका दिया गया, आपने कुछ नहीं किया, नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं। उसके बाद इश्यूज को आप कुछ भी करके क्रिमिनल लॉ नहीं बना सकते। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। उसके बाद भी मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक हुआ, अब मजबूरी में कानून बना था। ये जवाब बीजेपी का, बीजेपी को उतना नहीं बोल रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जवाब आपका गलत है। ये आप कहना कि सिविल को क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं ला सकते। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट जुर्म नहीं मानता, वो कहता है कि ये जुमला बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको क्रिमिनल बना देंगे। अरे आप कैसे लॉ की बात कर रहे हैं सर? मजबूरी में क्रिमिनल ऑफेंस में लाना पड़ा ताकि समाज में बुराई रुक जाए, इस वजह से क्रिमिनल ऑफेंस सिविल इश्यूज में लाते, जमा करते, आपने क्रिमिनल इश्यूज क्यों बनाया? नहीं आप अध्ययन करो। प्लीज जब ट्रिपल तलाक देने से तलाक हुई नहीं, बिल्कुल गैर मुअस्सिर अल्फाज जैसे गाली दी गई हो, तो क्या इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा? बिल्कुल। अब आप सिर्फ ग्रहण कर लें, मैं 2 चीज में कंक्लूड कर दूंगा अपनी बात को। आप निश्चित रहें जी। और फिर पैनलिस्ट विनम्र पूर्वक मैं कहूंगा कि आप बीच में जो है ना करोगे, मैं कानून की बात करूंगा, मैं किसी अपनी बात करें सर, अपनी नहीं बात करूंगा। जी ठीक है सर। इस बिल में खराबी, बहुत सी खराबी है जिन्होंने जिक्र कर दिया, मैं उसको रिवीजन नहीं करूंगा चूंकि वक्त का अभाव है, लेकिन उसमें सबसे बेसिक पॉइंट जो है, जो गौर करने का काबिल है, वो ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि क्या गारंटी है कि इस कानून लाने से ये बुराई रुक जाएगी जी। क्या गारंटी है कि इस कानून के लाने से जैसे 498A से मिसयूज हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसमें ना हो। अब सर प्लीज लेट मी स्पीक, आप बैठ जाएं 2 मिनट जी। उसमें 498A में क्या था, वो किस के मुताबिक क्रूएल्टी और डॉरी
दोनों के समझ में वो ए और बी दोनों सेक्शन बनाया गया था 498 ए और बी। उसमें क्या था कि अगर कोई, मैं पढ़ के सुना देता हूं, हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, देन शैल बी टू थिंग। अगर हस्बैंड यानी पति या उसके रिश्तेदार, रिलेटिव्स रिश्तेदार ऑफ हस्बैंड, पति या पति के रिश्तेदार, पति शौहर को कहते हैं, शौहर या शौहर के रिश्तेदार के द्वारा के जरिए से अगर पत्नी को पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो पुलिस में एक कंप्लेन करती तो उसके पति भी और उसके रिश्तेदार दोनों जो है पुलिस खींच के बंद कर दिया करती थी। इसमें इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इतना मिसयूज हुआ कि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को फिर आदेश देना पड़ा सीआरपीसी 41 के तहत कि ये इसका जो मिसयूज हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून बनाया 41 सीआरपीसी 41 में कि अगर ऐसा होता है उसमें क्या करेगा कि अगर केस होता है, एफआईआर होता है, तो उसमें पुलिस पहले संतुष्ट होगी कि ये 498 ए का केस है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, संतुष्ट होने का मतलब उसमें तहकीक कर लेगी। नंबर 2, उसको 2 हफ्ते का समय दिया जाता है कि उसमें तहकीक करके मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करे और बगैर चालान का, बगैर वारंट का या बगैर मजिस्ट्रेट की अनुमति का पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत विनम्रपूर्वक आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब जैसे 498 ए में एक्सप्लॉइटेशन होता था, मिसयूज होता था, महिलाएं क्या यहाँ मिसयूज नहीं होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सर, प्लीज गिव मी 1 मिनट। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कानून मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन का बना है, एक पति, ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन है। आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट्स अपनाएंगे, बुनियादी अधिकार, तो उसमें एक धारा है आर्टिकल 14 में ये बात बताई गई है, मैं उसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जी, सभी के लिए बराबर। यस यस यस, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट आल्सो मीन दैट सेम कंडीशन लिमिटेड इक्वली विद एवरीवन। इसका हिंदी में मतलब ये उर्दू में बताऊंगा कि कानून के समझ समानता, कानून की दृष्टि में समान संरक्षण, यानी कानून के नजर में सब बराबर है और कानून के एतबार से सबको बराबर तहफ्फुज़ हासिल है। इसका एक मतलब ये है कि सेम कंडीशन विल बी ट्रीटेड, कि सबके साथ एक ही रवैया इख्तियार किया जाएगा, किसी गरीब अमीर के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सर मैं, अरे मेरी बात कंप्लीट कर लो सर, सर मुझे विरोध प्लीज है, आप उसको नहीं रोक सकते, इनको भी है, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए कानून क्या कह रहा था कि सबको समानता है, कानून की दृष्टि में समानता था, समान संरक्षण ये कह रहा था, नहीं कह रहा था आर्टिकल 14। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 498 एक्ट बना था हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम सबके लिए, वो हिंदू डॉरी एक्ट था या क्रुएल्टी का था, उसमें प्रावधान क्या था? मैंने बताया कि देन शैल बी टू थिंग, उसमें 2 चीजें हो सकती है। अगर कोई क्रुएल्टी करता है अपने हस्बैंड या रिलेटिव, कोई पति से मांगती है ये का, ये किसी भी किस पर डिमांड करते हैं, तो उसको क्या होगी? 1 साल की सजा हो सकती है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स एंड शैल आल्सो बी एबल टू फाइन। उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। मैं 498 ए की बात कर रहा हूँ, मैं इस कानून की बात नहीं कर रहा हूँ मुसलमानों का। 498 का प्रावधान ये है कि उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है और वो पेलेबल सेक्शन में भी आ जाता है, फाइन देके छूट भी सकता है। सर ये एक्सटेंडेड एक चीज तो ये हो गया, और जो अभी कानून पास हुआ उसमें अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो 3 साल की सजा होती है। बताओ मेरे जी, डबल स्टैंडर्ड दो तरह ये 14 का वॉल्यूशन है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्हें ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन नहीं है? जी हाँ, जी हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ मौलाना कासमी, लेकिन इससे पहले मैं 20 सेकंड के अंदर मौलाना जमाली से पूछना चाहूंगा। जी आखिर में 20 सेकंड सिर्फ आपके पास, फिर इसके बाद मौलाना कासमी और गुफ्तगू खत्म। इससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको जी, मौलाना कासमी साहब ने एक बात कही थी कि अगर ये बिल पास हुआ है और उस पर असर नहीं होता, उसके बावजूद भी जी असर न होने के बावजूद भी उसको सजा दी जाती है। जी इसकी एक मिसाल ये ले लीजिए, इन्होंने इसका दिफा यूं कहा है कि अगर असर नहीं हो तो सजा नहीं देनी चाहिए। आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि अगर कोई शख्स, आप या मैं ही, जी मैं आपको गाली दे रहा हूँ जी,
تو اس گالی کا اثر آپ کے ذات پہ کچھ نہیں ہوگا، بٹ آپ کو جو میرے برا کہا ہے، یہ جو گالی دی ہے اس کا مجھے بھرنا پڑے گا، مجھے سزا ملے گی۔ اگر یہی سوال یہ وہ چیز جرم ہوگی، اور آخر میں آپ کے لیے وہ چیز جرم ہوگی، لیکن آخر میں ہم چلتے ہیں پھر مولانا قاسمی کے پاس۔ جی مولانا قاسمی، if you don't mind, I know you can't able to know what difference between How can you say? I don't know what is between criminal issues and مولانا قاسمی Sir, how can I- آپ نے 2006 میں سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا کہا تھا آپ کو نہیں معلوم؟ کہا تھا ایچ کے سیما اور آر وی رویندر نے فیصلہ سنایا تھا کہ سول معاملات کو کرمنل نہیں بنایا جا سکتا، اور یہ سول معاملہ اس کو آپ نے کرمنل بنا دیا۔ آپ کہہ رہے بنا سکتے ہیں؟ آپ نہیں سر، نہیں جانتے سر، میں لے کے آیا ہوں۔ اور یہ جو مسلم منچ کے کہہ رہے تھے کہ میری ذات سے بھائی، تو اس کو سپریم کورٹ نے مانا ہی نہیں، تمہاری ذات سے ہو کسی کی ذات سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب اس نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی اثر کسی کی رائے میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر قانون کیسے بنا سکتے؟ تیسری بات میں کہہ رہا ہوں سر کہ آپ لاکھ قانون بنا لیجیے، کیا ریپ کے خلاف ہمارے ہندوستان میں قانون نہیں ہے؟ ریپ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قانون اگر بنانا تھا تو جو شریعت کہتی ہے، جو پرسنل لا کہتی ہے، آپ ان کو بٹھاتے، ان سے پوچھتے کہ شریعت میں اس کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کو موقع دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی بات چل رہی ہے سر، یہاں قانون کی حکومت کی بات چل رہی ہے، حکومت کی بات چل رہی ہے، سپریم کورٹ حکومت کی طرف کی یہاں پہ۔ دوسری بات، ہمارے ہندوستان میں کیا قانون اس سے پہلے نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 498 آپ یوز کرتے، سپریم کورٹ نے منع نہیں کیا، 125 آپ یوز کرتے، کیوں نہیں کیے؟ اور دوسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ آزادی مل رہی، آزادی نہیں ہے سر، یہ مسلم عورتوں کو، اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر مسلم عورت اگر خود سے طلاق لینا چاہے تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے سر، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر عورت طلاق لینا چاہے تو اس میں ذکر نہیں ہے کہ وہ طلاق کیسے لے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ طلاق بدعت کی کیٹیگری کے جتنے بھی آتی ہیں انہیں کو بھی طلاق بدعت کہتے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے اور نہ ان کی حکومت کو معلوم۔ سر آپ کو نہیں معلوم؟ پلیز لسن سر، let me complete. If you جی، اور یہاں وقت ختم ہو گیا ہے ہماری ڈیبیٹ کا۔ آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے ٹرپل طلاق کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، کیا ہے ٹرپل طلاق اور کیا 3 طلاق دے کر مسلم مہیلاؤں کو گھر سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے یہ صحیح ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے دیکھا قانونی نقطۂ نظر سے بھی اور شرعی نقطۂ نظر سے بھی، اور یہ بل جو لایا گیا مسلم خواتین کو ضرورت فراہم کرنے کے لیے، کیسا ہے وہ بل؟ کیا وہ واقعی مسلم مہیلاؤں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، یا اس کے اندر ظلم کے نئے دروازے کھول دیے گئے ہیں؟ آخری گفتگو ہم شریک ہوں گے ہمارے استاد محترم چیف جسٹس اس وقت کی گفتگو کے، اس وقت کی ڈیبیٹ کے حضرت مولانا مفتی سجاد صاحب قاسمی صاحب سے آخری گفتگو اور یہ فائدہ۔ First, I would like to welcome all of you to gathered here in this wonderful program. It is organized by the students of Darul of Lebanon, and today I am compelled to speak in English because the debate has started in this very language. And
Definitely it is pleasing me a lot to listen to this speech. It was combined with the documents and combined with the materials, and also a lot of the documentation, as well as there were a lot of materials that were adopted from the different kinds of books. So this kind of debate must be conducted in these kind of seminaries. It was the demand of the time, it was the call of the time, it was the demand of the country's face and the demonstration that is being carried out in the country and across in each and every corner of the world. So I would like to once again contribute my thanks, gratitude to all of you. میں بہت شکرگزار ہوں تمام دارالمعارف کے ان طلباء کا جنہوں نے بڑی اہم پیش رفت کی ہے اس حوالے سے. It is a great initiative that you have started here in this university. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے جو آپ نے اس ایک عظیم الشان ادارے میں جس کی بنیادی رکھی گئی اسی بنیاد پر کہ اسلام کی جتنی تحریکیں ہیں اور اسلام کی جتنی کارکردگی ہے, اسلام کے جتنے کارنامے ہیں, اسلام کی جو سنہری تاریخ ہے, اس کی جو داستان ہے اور اس کا ایک بہت سنہرا موقع ہے, اس موقع کی بھرپور ترجمانی کی جائے اور اسلام کا جو سنہرا چہرہ ہے ان لوگوں کے سامنے آئے جن کے دماغوں کو, جن کے ذہنوں کو, جن کی عقلوں کو اور جن کی روحوں کو اور جن کے نفوس کو طرح طرح کے فتنوں سے, طرح طرح کے فساد سے, طرح طرح کے وائرس سے, طرح طرح کے غلط فہمیوں سے, طرح طرح کے مس انڈرسٹینڈنگ سے بھر دیا گیا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک کارنامہ میں اس کو کہوں گا, اس لیے کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم روحانی اولاد ہیں اور ان کے مشن کے ہم ایک بہت بڑے رکن رکین ہیں اور اسی مشن اور اسی تحریک کے اور جس مشن کو اور جس تحریک کو انہوں نے شروع کیا تھا, جس کا آغاز کیا تھا, جس کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینہ بہایا تھا اور جس کے لیے ساری کارکردگی کی تھی اور جس کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں دی تھیں اور جس کے لیے ہر چیز کو انہوں نے تحقیق کیا تھا, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نانوتوی کا صرف اور صرف محور درس نظامی نہیں ہے. نانوتوی کا صرف اور صرف محور تقریریں اور تحریریں اور تصنیف اور تعریف نہیں. نانوتوی ایک شخصیت کا نام ہے, نانوتوی ایک مدرسے کا نام ہے, نانوتوی ایک تحریک کا نام ہے, نانوتوی ایک مکتب فکر کا نام ہے, نانوتوی ایک بڑے کتب خانے کا نام ہے, نانوتوی ایک بڑی دبستان کا نام ہے, نانوتوی ایک بہت بڑے چمنستان کا نام ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفات پر آپ غور کریں گے, ان کی تصنیفات اور ان کے کارناموں کو دیکھیں گے تو جس طریقے سے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آزادی ہند کی تحریک اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے شاگردوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے فالوورز کو اور اپنے حلقہ احباب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے شاملی کے میدان سے لے کر کے اور جو دیگر تحریکیں اٹھی ہیں ان تمام تحریکوں کے اندر ان کا ایک بڑا کارنامہ اور ان کا ایک بڑا رول رہا ہے. اسی طریقے سے یہی نانوتوی جب شیعیت کا دور ہے اور شیعیت سارے کے سارے ایران سے اس ملک کی طرف آ رہے ہیں اور پورے اعتبار سے اس ہندوستان کے چپے چپے کے اندر ان کی تاریخ چل رہی ہے اور اپنے تانے بانے بن رہے ہیں اور اپنی سازشی جال بچھا رہے ہیں, اس وقت بھی نانوتوی جیسا مرد مجاہد پھر دوبارہ اٹھتا ہے اور پھر اس تحریک کو جو تحریک شیعوں نے چلائی تھی اس کی تردید کرتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کے لیے دلائل اور براہین فراہم کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے نانوتوی کی ایک تحریک کا حصہ عیسائیت ہے. عیسائیت جب سر ابھارتی ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے, اس کی گردن مروڑنے کے لیے اور اس کو توڑنے کے لیے اور اس کی دیوار کے اندر ایک آخری میخ گاڑنے کے لیے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ اٹھتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوازم کا جب شور شرابہ ہوتا ہے اور پنڈت دیانند سرسوتی جس کو نہ تو اقلیدس کا علم تھا, نہ تو منطق کا علم تھا, نہ تو فلسفہ کا علم تھا, صرف اور صرف چند اشروں پر کیا تھا اس نے, اور نانوتوی کو اور نانوتوی کے ماننے والوں کو اور اسلام کے حامیوں کو اور اسلام کے سرگرم عمل رہنے والے لوگوں کو اس نے یہ مہمیز لگایا, ان کو ورغلایا اور ان کو ایک عاد دلائی کہ کون ہے جو میرے سوالات کا جواب دے, کون ہے جو میرے اعتراضات کا جواب دے, کون ہے جو میرے اشکالات کا جواب دے. پھر نانوتوی دوبارہ اٹھتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کا دندہ شکن جواب دیتے ہیں اور اس فتنے کی سرکوبی کر کے پوری امت مسلمہ کے اندر اسلام کی صحیح شکل, اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرتے ہیں. تو ہم اس کی روحانی اولاد ہیں. اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ وقت کا مطالبہ ہے, یہ وقت کی پکار ہے کہ پھر دوبارہ ہم اسی روحانیت کے ساتھ, پھر اسی قوت کے ساتھ, پھر اسی وسعت مطالعہ کے ساتھ, پھر اسی ظرف نگاہی کے ساتھ, پھر اسی نقطہ رسی کے ساتھ, پھر اسی نقطہ آفرینی کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھیں اور پھر اس کے بعد پیغام پہنچائیں کہ جس طریقے سے مدارس اسلامیہ کے عربیہ کے طلبہ تحریر اور تقریر کے اندر ایک اپنا نمایاں چھاپ چھوڑ سکتے ہیں, نمایاں شناخت قائم کر سکتے ہیں, اسی طریقے سے اس ڈیبیٹ کے میدان کے اندر بھی ایک نمایاں مقامات انجام دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اگر صرف اور صرف لباس بدل دیا جائے, شیروانی پہنا دیا جائے اور شیروانی کے بعد صاحب جو
जरद लिबास आते हैं, उन लिबास में इनको अगर मरबूस कर दिया जाए तो ये इम्तियाज मुश्किल हो जाएगा कि ये दीनी दानिशगाहों के पढ़े हुए हैं या आसमी दानिशगाहों के पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस बहस से और इस मुबाहसे से और इस डिबेट से सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने आई है, ये खुल के आई है कि हमारे अंदर हर चीज के करने का मलका, सलाहियत और लियाकतें छुपी हुई। वक्त ये है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें। जरूरत इसकी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इमाम बने, जरूरत सिर्फ इसकी नहीं है कि सिर्फ आप मुअज्जिन बने, जरूरत इसकी नहीं है कि सिर्फ आप मुदर्रिस बने, जरूरत इसकी नहीं है कि सिर्फ आप खतीब बने, जरूरत इसकी भी है कि आप हुकूमत की ईवानों में जाएं और हुकूमत की ईवानों के अंदर इस्लाम की सदाए बाज़गश्त को फिर सुनाएं। जैसा कि आपके बहुत बड़े अकाबिर में जिनका नाम बहुत रोशन और जिनका नाम सरफिरिस्त आता है सियासत के अंदर, और वो बिजनौर से ताल्लुक रखने वाले कौन है बताइए आप? मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सैहानी, जिनकी तकरीर के अंदर वो आतिश थी, वो सोजिश थी, वो हरारत थी कि बातिल भी लड़ जाता था और बातिल भी कांप उठता था, और उनकी दहाड़ के सामने जो शेर की तरह दहाड़ते थे तो पार्लियामेंट के अंदर एक गूंज मचती थी। जरूरत है उस गूंज की, जरूरत है उस गरज की, जरूरत है उस जोरे बयानी की कि जिस जोरे बयानी से आप पार्लियामेंट के अंदर भी अपनी बातों को पहुंचा सकें, पार्लियामेंट के अंदर भी अपने पैगाम को पहुंचा सकें। इस्लाम की शफाफियत को, इस्लाम की सफाई सुथराई को, इस्लाम के मुअतदिल निज़ाम को आप उनके सामने पेश कर सकें। तकाज़ा इसका एक सबसे बड़ी चीज हमारे सामने ये आई। इसका मतलब यह है कि अगर हम मदरसे से फारिग होने के बाद अगर अपने अकाबिर के मनहज को, अपने अकाबिर के तरीके को अगर हम थामे रखें और थाम करके हम आगे बढ़ें तो यकीनन वो वक्त दूर नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज सुनाई देगी। और इसी तरीके से हुकूमत के ईवानों के अंदर हमारी आवाज रहेगी। हुकूमत के जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं और हुकूमत के जितने बड़े मिनिस्टर्स हैं, जितने कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनमें हमारा तर्जमान होगा जो आदल की बात करेगा, जो इंसाफ की बात करेगा, जो मुसावात की बात करेगा, जो यगानियत की बात करेगा, जो तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेगा, और इस्लाम का भी बोलबाला होगा। और जो पूरी इंसानियत आज करप्शन के अंदर डूबी हुई है, पूरी इंसानियत जो मुसीबतों के अंदर डूबी है, जो क्रूरलिटी और जुल्म के अंदर डूबी हुई है, ये सारी इंसानियत दोबारा आजाद होगी और उसको फलने का, फूलने का, चमकने का, खिलने का और महकने का उसको एक मौका मिलेगा। और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब अच्छे जहन के लोग, अच्छे दिमाग के लोग, अच्छे फिक्र के हामी लोग वहां पहुंचे। ये सबसे बुनियादी चीज है आज की इस मुबासे से ये बात सामने खुल करके आई है कि हमारे अंदर वो चीज भी है सलीकामंदी के साथ, करीने के साथ, हुस्न जमाल के साथ, तरतीब के साथ अपनी बात को पेश करें, जैसा कि आज हमें मालूम हुआ। और आपको बड़ी हैरत होगी और हैरानी होगी कि ये जो डिबेट है बरसों की, महीनों की और इस तरीके से 2-3 हफ्ते की काविश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये काविश 3-4-5 रोज की है। 5 रोज पहले तलबा ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद सारे मज़ामीन नोट किए गए, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी इन्होंने पढ़ा, समझा और बाहमी ताउन से इस मसले को हल किया। इसका मतलब ये है कि नानोत्री की रूहानी औलाद के अंदर आज भी वही गर्मी है, आज भी वही सोजिश है, बस ये उसके ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है जिस पर्दे को हटाने की जरूरत है। गर्दगवार से हम हट चुके हैं, जरूरत है कि गर्दगवार को हटाएं और फिर दोबारा हम उसी आन बान के साथ, उसी शान के साथ और उसी आबोताब के साथ फिर दोबारा हम आगे बढ़े और फिर नानोत्री की तहरीक को हम आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो तीसरी बात आई है इसके अंदर, तीसरी बात यह है कि हिंदू मजहब का जो निजाम है उस निजाम को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। हिंदू मजहब के निजाम को अगर हम गहराई से पढ़ते हैं, इस खास तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, तो याद रखिएगा कि अगर हिंदू मजहब के कवानीन को आप सही अंदाज से पढ़ते हैं और उसका एक इस्लाम से तकाबली मुताला करते हैं तो दिन दूर नहीं कि बहुत से ऐसे हिंदू हैं जिनके सामने इस्लाम की सच्चाई जाएगी, इस्लाम की हक़ानियत जाएगी, तो उनका आज भी दिल रोशन है, आज भी दिमाग रोशन है, आज भी उनके जहनों के अंदर मानने की सलाहियत है, दिमागों के अंदर इतनी उसात है कि आपकी बात को सुने। शर्त यह है कि हमको पैगाम पहुंचाने का सलीका। और जब ये बात आ रही है कि हिंदू धर्म का जो तकाबली मुताला है वो करना जरूरी है ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी खलीज कायम हो गई है, इस खलीज को पार किया जाए और इस ब्रिज को गिरा दिया जाए और दोनों को आपस में जम कर दिया जाए। जो गांधी की तहरीक थी, जो है मदनी की तहरीक थी और जो सैयद शाह अहमद शहीद की तहरीक थी कि हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के इस मुल्क को फलने फूलने का मौका दें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं और इस मुल्क की तहजीब और सकाफत की तामीर में हर एक का एक हिस्सा हो, हर एक की एक साझी हो, हर एक की एक शराकत हो। तो जब ये बात मालूम है कि हमें तकाबली मुताला करना पड़ेगा तो तकाबली मुताले का जो सोर्स है, जो उसका जरिया है, जो उसका टूल्स है, जो उसका वे है, जो उसका जरिया है, उसको भी सीखना पड़ेगा। और जरिया क्या है? हिंदी जबान। आप कहेंगे भाई मदरसे में हिंदी जबान की तलकीन करने लगे आप। मैं आपसे कहूंगा कि फारसी किसकी जबान है? सर्दिश की जबान है, आर्ट परस्तों की जबान है। क्यों क्या हमारे अकाबिर ने फारसी को मुसलमान नहीं बनाया? क्या हमारे अकाबिर ने इंग्लिश को मुसलमान नहीं बनाया? इब्ने कसीर का पूरा तर्जमा इंग्लिश के अंदर मौजूद है, रूहुल मानी का पूरा तर्जमा इंग्लिश के अंदर मौजूद है, हिदायत का तर्जमा इंग्लिश के अंदर मौजूद है। जब इस्लाम किसी मुल्क के अंदर जाता है तो उसके अंदर
अपना एक छाप छोड़ता है, अपने एक शनाख्त कायम करता है, अपना सिक्का जमाता है। इसी वजह से अंदलुस की जबान उसकी एक अलग जबान थी, लेकिन अंदलुस का एक चरवाहा भी, अंदलुस का एक काश्तकार भी शायर हुआ करता था। जब इस्लामी तहरीक पहुंची, इस्लामी रो और इस्लाम की बिजली जमा चमकी है, तो हर आदमी अरबी जबान बोलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे अकाबिर की तहरीरें फारसी के अंदर उस वक्त आई जब फारसी का चलन था, फारसी का रिवाज था। ये जमाना है हिंदी जबान का, ये जमाना है संस्कृत का, ये जमाना है इंग्लिश का, ये जमाना है चाइनीज जबान का, ये जमाना है फ्रांसीसी जबान का, जिसका गलबा है, जिसका रोक दबदबा है और जिसके तरफ लोग खींचे चले जा रहे हैं। जरूरत इसकी है कि उनकी जबान को सीखें और उनकी जबान के अंदर हम इस्लाम की दावत दें। इसलिए आप जब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों का मुताला कीजिएगा तो ये बात खुलकर सामने आएगी कि नानोतवी की किताबों के अंदर कुरान पाक और अहादीस बहुत कम पाएंगे। आप कुरान पाक की आयतें बहुत कम पाएंगे, अहादीस बहुत कम पाएंगे। आप आबे हयात का मुताला कर लीजिए, आप क़िबला नुमा का मुताला कर लीजिए, आप तक़रीर दिल पज़ीर का मुताला कर लीजिए, बहुत एक ही दुखी आयतें नजर आएंगी। इसका जवाब यह है कि नानोतवी की जो गुफ्तगू हो रही है, नानोतवी का जो मुखातब है वो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, सहाबा के अक़वाल को नहीं मानता। इसलिए नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो मनहज अपनाया, वो तरीका अपनाया, वो उसलूब अपनाया, वो तर्ज अपनाया जो तर्ज लोगों के दरमियान मकबूल है, जो लोगों के दरमियान राइज है। और उसी तरीके से उन्होंने तमाम फ़िरक़े बातिला की तरदीद की कि पंडित को अगर ये मालूम हो जाए या किसी पादरी को ये बात मालूम हो जाए या किसी पोप को ये बात मालूम हो जाए या किसी फादर ऑफ चर्च को ये बात मालूम हो जाए कि नानोतवी का साया भी नजर आ रहा है, तो फौरन चंपत हो जाए और अपने चक्कर में जाए। तो कौन थी? इसी वजह से उन्होंने जबान को सीखा था, उनकी तहरीक को सीखा था, उनको समझा था। उसके बाद चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और अभी तकरीबन 3-4 रोज से आप लोग ये तकरीरें सुन करके ऐसा लगता है कि सर के अंदर सोने का कोई तकरीर कर रहा है और आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। मैं तो समझता हूँ कि आप दीवार बहुत मजबूत है और मतलब टूट गई होगी। उसके बाद जो है दस्तूर हिंद, जो बुनियादी चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई है मदीना के अंदर, तो आपने मिसाक़ मदीना तैयार। तो मिसाक़ मदीना का मतलब ये समझिए कि जब तो एक मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग रहें तो उस मुल्क को कैसे चलाया जाएगा, उस मुल्क का निजाम क्या होगा, उस मुल्क का दस्तूर क्या होगा, उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उस मुल्क का प्रोविजन क्या होगा, उसका आर्टिकल क्या होगा, उसका एक्ट और क्लाउज क्या होगा, इन तमाम चीजों की तरतीब दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मिसाक़ मदीना तैयार किया, गोया कि एक पार्लियामेंट्री निजाम है। इस पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर एक तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई। ये तय कर लिया गया कि हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, कोई दूसरा हम पर हमला करता है तो हम उसकी मुदाफत करेंगे, किसी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। यही तो है फंडामेंटल राइट इसमें हिंदुस्तान के अंदर। उसमें इक्वालिटी ऑफ राइट्स है, जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, ऐसे ही पीस है एंड कॉमन इंटरेस्ट है एंड कॉमन बेनिफिट्स है। इसी के ऊपर सब जोर दिया गया उसके अंदर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कानून की तरतीब, जिसको मिसाक़ मदीना कहा जाता है, और मिसाक़ मदीना के ऊपर मुस्तकिल अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मायनात शागिर्द अल्लामा सैयद सुभान नबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत नबी के अंदर मुफस्सल बहस किए मिसाक़ मदीना के ऊपर। उसको पढ़िए कि मिसाक़ मदीना में कौन कौन सी चीजें थी जिसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तय किया। तो उसके लिए बुनियादी जरूरत यह है कि हम मुल्क के कानून को पढ़ें। मुल्क के कानून को पढ़ने के लिए तलबा के दिन फौरन सवाल आ जाता है, इंग्लिश हम पढ़ते नहीं, हिंदी पढ़ते नहीं, संस्कृत पढ़ते नहीं, कैसे हम मुल्क के कानून को पढ़ें? देखिए मदारिस का एक अलग निजाम है। इस निजाम के अंदर जो निजाम चल रहा है ये सबसे बेहतरीन है, सबसे जामे है, सबसे हसीन है। इसके निजाम को यूं चलने दिया जाए और बाकी जब आप फरागत कर लें तो अपने घर वालों से वक्त मांगे और मांग करके आप आगे बढ़े। आप आए, लॉ के अंदर आए, कानून के अंदर आए, सियासत के अंदर आए, समाजियात के अंदर आए, मुआशरत के अंदर आए। और याद रखिए इसके लिए आपको दिल गुर्दा मजबूत करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा वाक़या सुना रहा हूँ। शाम के बहुत बड़े अल्लामा जो बाद में हिजरत करके आ गए थे मक्का के अंदर, उनका नाम अली तंतावी। अली तंतावी ये बहुत बड़े अदीन हैं, चौथी के उलमा में शुमार इनका होता है। उनकी आप तहरीरों को पढ़िएगा तो ऐसा मालूम होगा जैसा कि आपकी जो ईमानी चिंगारी है वो खुद बहुत शरारे उड़ाने लगे और ऐसा लगे जैसा कि आप खुद आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर उठ रहे हैं। ये उस तहरीर के मालिक है। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो वालिदा ने ये निजाम बनाया कि पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसका वालिद बहुत मशहूर होता है लोग बहुत आते हैं, लेकिन वालिद का इंतकाल हो जाएगा तो जितने रियाकार और मक्कार किस्म के लोग होते हैं धीरे धीरे खुद बहुत खिसक जाते हैं और अपने राह ले लेते हैं। तो उनकी वालिदा ने उन्हें जो वालिद का कपड़ा था उस कपड़े को काटती थी और काट करके सुई से सिलती थी और सिल के पढ़ाती थी। और यही है अली तंतावी जिन्होंने फिल्मों के अंदर भी काम किया सिर्फ पैसे के लिए, जिन्होंने मुंशी का भी काम किया पैसे के लिए। लेकिन बाद के अंदर जब ये शाम के काजिल खुदात बने उस वक्त एक औरत का खत आया कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मेरे पास नहीं है। तो जुमला उनका था और जुमला ये था कि अक्सर मिन नवाबिग मिन अबनाइल फुक़रा, अक्सर नवाबिग मिन अबनाइल फुक़रा, कि सबसे ज्यादा नाबग़े रोजगार जो शख्सियत पैदा हुई हैं वो इन्हीं गरीबों के बच्चे।
इमाम बुखारी को देख लीजिए, बदरुद्दीन अहमद साहब को तो आप जानते होंगे, उनकी साबिक़ा हालत को देखिए। बाप काश्तकार थे और काश्तकारी का यह आलम था कि जब धूप होती थी जून की और धूप में जब हल चलाते थे, थक जाते थे, तो दरख्त के नीचे साए में बैठ करके कहते थे कि अल्लाह ताला कि आप जो है रिस्क के जिम्मेदार हैं, कोई और भी सबील अपने लिए पैदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद अतर की का उन्होंने कारोबार शुरू किया, तैयारी शुरू किया, फिर उसके बाद इतना फले फूले। इसलिए हम अपनी गुर्बत को हम बहाना न बनाएं। गुर्बत के साथ साथ अगर हौसला है, हिम्मत है, जुरात है, जवामर्दी और पामर्दी है, तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप उन मालदारों के मुकाबले में आएंगे जो मालदार आपको हकीर समझते हैं, उनको आप उनकी आप खिदमत कर सकेंगे और उनको जो है आपको आप फायदा पहुंचा सकेंगे और उनके लिए आप सुबह साबित हो सकेंगे। तो दूसरी बात यह है कि आपका मनहज सिर्फ और सिर्फ 3000 वाला न हो। मैं बहुत कह रहा हूँ, उसको कहना भी चाहिए, मुझे यहाँ इसका कहने का कि जो जहन हमारा बना हुआ है कि मदरसे में पढ़ते हैं 3000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, घंटा करने से क्या फायदा, उस्ताद की बात सुनने से क्या फायदा, मुज़ाकरा करने से क्या फायदा, नंबर लाने से क्या फायदा। ये एहसास कमतरी है, ये एहसास कमतरी है भाई। आप याद रखिए कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो आजकल दौरे में सबसे ज्यादा मशहूर है, इससे कहीं ज्यादा दौरे मौलाना असद मदनी साहब के हुए पूरे मुल्कों के दौरे। मौलाना असद मदनी साहब रहम उनके दौरे हुए। अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कह देते हिंदुस्तान में कि मैं सिर्फ सफर ही करूंगा, तो मैंने समझता हूँ कि एक दिन भी खाली होता, उनका एक दिन भी खाली ना होता। यानी रोजाना जो है तुर्की की फ्लाइट कभी लगी रहती, कभी सऊदी की फ्लाइट लगी रहती, कभी शाम की फ्लाइट लगी रहती, कभी अमेरिका की फ्लाइट लगी रहती, कभी लंदन की फ्लाइट लगी रहती। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरीके से मौलाना हमीद रहमान आदमी का नाम सुना होगा आपने, मुहद्दिस कबीर, कि वो है कि जो बेचारे लूम वहां चलता है और लूम चला करके लोग साड़ी बुनते हैं, ये साड़ी बुनने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मिस्र से लोग आते थे तैयारा लेकर, अपना खसूसी तैयारा दिल्ली के अंदर लैंड करते थे और आते थे उनसे पढ़ने। किस चीज ने बनाया? आपके अंदर अगर जौहर है, आपके अंदर अगर कमाल है, आपके अंदर अगर महारत है, तो मैं कहता हूं कि अगर मोची भी कोई माहिर है तो उसके पास लोग जाएंगे, जे जाए कोई गाली। अगर वो मोची भी एक बाकमाल है तो उस मोची के पास जाएंगे, बचे हो दूरी बर्दाश्त करेंगे, मसाफत को तय करेंगे, लेकिन उसी के पास जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप जो है कमाल पैदा करें। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की शबा। ये हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए और ये हौसला होना चाहिए, तब जाकर के हम कुछ कर सकेंगे। उसके बाद आखिरी बात मैं कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि चंद बातें जो है इसके दरमियान आई थी, उसमें से एक बात ये थी ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल स्लाइड का तर्जमा इन्होंने किया है उर्दू और हिंदी में, इसको रटें, इंग्लिश में भी है और इसको आप लें और इस पर याद करें और वक्त की जरूरत समझें। सही कह रहा हूं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 20 कानून याद है, सिर्फ 20 दफा, और 20 दफा अगर आपने एक साथ में सुना दिया किसी पार्लियामेंट के मेंबर को, तो शायद के पायजामा चेक करना पड़ेगा। और खास बात यह है कि मैं समझता हूं कि पूरे हल्के मदारिस में शायद ऐसा प्रोग्राम अब तक तो मैंने नहीं देखा, और उसमें आपने देखा हो कि दारुल में तकरीबन 4 साल रहने का मुझे इत्तेफाक रहा है और दारुल में सज्जाद की अंजुमन बहुत मोतबर और बहुत ही काबिल कदर अंजुमन रही है। इस तरीके से मदनी दारुल मुताला, वो भी उसका भी एक नाम है, उसका भी एक शोहरा है, उसका भी एक मकाम है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जो बिल्कुल दौरे हाजिर के मौजूद को लिया जाए, उसमें इंग्लिश की तैयारी की जाए, ये सब चीजें नहीं पाएंगी। यकीनन हमारे अंदर वो चीज है कि हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं, शर्त यह है कि हम थोड़ी सी मेहनत करें। और हम लोग जो मदरसों के अंदर मेहनत कर रहे हैं, हमारा मिजाज मनहज कुछ और है। हमारा मनहज है कि इम्तिहान के जमाने में बस सेहत खराब करो, रोटी बचाओ तहरीक नहीं, रोटी बचाओ तहरीक नहीं, इज्जत बचाओ तहरीक। आज हमारा नारा ये होना चाहिए, इज्जत बचाओ तहरीक। इज्जत हमारी बचे, इज्जत हमारे घर वालों की बचे, इज्जत हमारे सरपरस्तों की बचे, इज्जत मदरसे की इंतजामिया की बचे, इज्जत असातिज़ा की बचे और खुद इज्जत हमारे इज्जत नफ्स की बचे। इसकी जरूरत